Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our last topic of unit number 5, chemical reactions, and the lecture is lecture number 29. First of all, we will revise some of the basic points from our previous lectures. So question number 1 is define chemical reaction. Chemical reaction is rearrangement of atoms to form a new substance is called a chemical reaction. What are reactants? Substances which take part in a chemical reaction are called reactants. They are always written on the left side of a chemical reaction, and those which are formed as a result of reaction are called products. What are products? जब reactants react करते हैं और एरो की जो राइट साइड की तरफ जो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं. What is a chemical equation? Chemical equation is representation of a chemical reaction in terms of symbols, formula and sign is known as chemical equation. In chemical equation, the reactants and products are separated by an arrow. Reactants are written on the left side of the arrow and products are written on the right side of the arrow. The next question is, what is difference between addition reaction and decomposition reaction? Addition reaction और decomposition reaction में क्या difference है? Addition reactions are those chemical reactions in which two or more substances combine chemically to form one compound is called addition reaction. For example, when hydrogen combines with oxygen, it converts into H2O water. So this is an example of addition reaction. And what is decomposition reaction? A chemical reaction during which a compound splits up into two or more simple substances is called a decomposition reaction. यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड जो है वो जब उसको हीटअप किया जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, यानी कि सेपरेट हो जाता है, उसके पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं. आप किसी भी तरीके से इसको अपनी समझ के लिए इसको याद कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पोटाशियम क्लोरेट. व्हेन पोटाशियम क्लोरेट इज़ हीटेड अप, it converts into potassium chloride and oxygen. Then what is difference between balanced chemical equation and unbalanced chemical equation? A balanced chemical equation is that chemical equation in which the number of atoms of each elements on both sides of the equation, reactant side and product sides, are equal is called a balanced chemical equation. An unbalanced chemical equation is that in which number of atoms of each element on both sides of the equation, reactant side and product side, is not equal is called an unbalanced chemical equation. ये एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके साथ मैं रोज़ाना करती हूँ लेक्चर से पहले, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करें तो जो पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं आपके माइंड में एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाएं और आप उसको जो न्यू लेक्चर है उसके साथ उसका लिंक कर सकें. तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस. टुडे वी विल डिस्कस एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस, कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो कैसे चेंज होती है. लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी है क्या. बेसिकली एनर्जी इज़ एनीथिंग दैट मेक अस एबल टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे घरों में जो हम कुकिंग करते हैं तो वो खाना हमारा किस एनर्जी से बनता है? हीट एनर्जी से बनता है. इसी तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बर्न होते हैं, उनकी बर्निंग के प्रोसेस से हमारे थर्मल पावर स्टेशंस चलते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. इसी तरह से हमारी बॉडी को भी वर्किंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो कौन सी एनर्जी है? फूड एनर्जी है. यानी कि एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी
इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की कि केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी चेंज कैसे होता है। अब ये जो एटम्स हैं, ये सब्सटेंसेस जो हैं, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने स्ट्रक्चर्स को स्टेबल रखने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये सब्सटेंसेस जो हैं एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जब सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड्स होते हैं। ये आप लोग इंशाल्लाह ताला जब अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो बहुत डिटेल के साथ आप इस बारे में स्टडी करेंगे कि एनर्जी चेंजेस क्या होती हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस तरह से एनर्जी को यूटिलाइज करके सब्सटेंसेस जो हैं अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन अभी आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके जो बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उन केमिकल बॉन्ड्स में ऑलरेडी एनर्जी मौजूद होती है और वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए। सो अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन व्हेन इट्स एनर्जी इज चेंज्ड। जब किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी में चेंज आता है तो वो केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होता है। द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट और लाइट। अब ये चेंज एनर्जी में जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंज आता है वो दो चेंजेस हैं। नंबर वन इज़ एब्जॉर्बिंग हीट और लाइट, कि या तो वो अपने सराउंडिंग से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर रिलीजिंग हीट और लाइट, या फिर ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके नतीजे में हीट या लाइट जो है वो रिलीज हो रही है। सो ऑन दीज बेसिस केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर हम ये वर्ड देखें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक्सो एंड थर्मिक। एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड थर्म मीन्स हीट। सो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हीट जो है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट, यानी कि हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। बर्निंग इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को समझने के लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इवन घरों में भी जब हम कुकिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे ही स्टोव ऑन करते हैं हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो हमारा जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो भी थोड़ा हीटअप होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर अभी जैसे गर्मियां हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें ये फील होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया अगर आप मुसलसल हीट के सामने खड़े रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हीट है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है। फॉसिल फ्यूल्स बर्न इन एयर टू रिलीज हीट। बर्निंग के प्रोसेस में यू नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन इज़ कंपल्सरी। विदाउट ऑक्सीजन burning cannot be completed. So when carbon coal burns with the help of oxygen, it converts into carbon dioxide and it is given out heat that will release in the surrounding or in our environment. The next is CH4, methane gas plus oxygen. When methane gas and oxygen will combine together and they will form carbon dioxide plus water and again heat will given out. Next example is ferric plus sulfur. When ferric and sulfur combine together they will convert into ferric sulfide plus again heat is given out. So in every reaction you have seen that heat is given out in the environment. इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि हीट को रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हमारी सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो
इन सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फायरवर्क्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये शादी ब्याह में या कोई भी सेलिब्रेशंस होती हैं तो उसमें आप देखते हैं कि फायरवर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फायरवर्क भी क्या है, बर्निंग का ही एक प्रोसेस है, और जो फायरवर्क है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एक एग्जांपल है। नाउ let's move on to next page number 72. There is an activity given about exothermic reaction, that take a beaker and fill it half with water, add some unslaked lime in the beaker and stir it. After 20 to 30 seconds, touch the outer side of the beaker. What do you feel? Why does it happen so? तो डेफिनेटली क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब हम बीकर को टच करेंगे तो बीकर हमें वार्म महसूस होगा, हीटअप हो जाएगा बीकर, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ये इसका अनस्लेक्ड लाइम का वाटर के साथ, तो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस हुई है, और उस हीट की वजह से जो बीकर होगा वो भी हीटअप हो जाएगा। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक reaction. Calcium oxide plus water, they will combine together to form calcium hydroxide and heat will be given out. The next type of chemical reaction is endothermic reactions. Endo means inside and thermic means heat. इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, it will convert into calcium oxide plus carbon dioxide. Again, there is an activity 5.6 activity that is describing about endothermic reaction. What you need to do, that take some sodium carbonate solution in a beaker, insert a thermometer in the solution and note down the temperature. रिएक्शन शुरू होने से पहले जब सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन हमने बीकर में लिया तो उसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि उसका टेम्परेचर क्या है। मिक्स कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन इट, अब उसको कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देंगे। नाउ अगेन नोट डाउन द टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। अब जब ये दोनों रिएक्टेंट्स मिक्स हो जाएंगे तो इनकी मिक्सअप होने के बाद हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि उसका टेम्परेचर क्या है। तो चूँकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ कि जो सराउंडिंग की हीट है वो केमिकल रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से इसका जो अपना टेम्परेचर है वो फॉल डाउन कर जाएगा एंड वी विल फील दैट बीकर बिकम्स कोल्ड. This is because an endothermic reaction takes place by absorbing heat from the surrounding walls of the beaker. इसके जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसलिए हीट जो है वो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के साथ आएगी. दे विल कंबाइन एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड. इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन is also an example of endothermic reactions. When hydrogen and iodine react together, they form hydrogen iodide. That is also an example of endothermic reactions. इंशाल्लाह ताला हमारे स्कूल जब ओपन होंगे तो कोशिश करेंगे कि हम लैब में जाकर बाकायदा इन रिएक्शंस को परफॉर्म करके देखेंगे, तो आपको ये रिएक्शंस जो हैं ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे और आप खुद जब वो बीकर को टच करके फील करेंगे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये रिएक्शंस जो हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इनको समझना आपके लिए और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा.
लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसी लेक्चर के साथ एक वीडियो भी अपलोड की है। उस वीडियो में आप विजुअली देख सकेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह से एनर्जी चेंज जो है वो इन केमिकल रिएक्शंस में होता है। नाउ ऑन पेज नंबर 73 इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज डिस्क्राइब्ड कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हमारी रूटीन की ज़िंदगी में क्या रोल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड to fulfill our needs of heat energy for various purposes। सबसे पहला तो हमारा जो मेन हमारी ज़रूरत है फूड एनर्जी कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना ही हमारा किस एनर्जी से बन रहा है, हीट एनर्जी से बन रहा है। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग of fuel at our homes is used for cooking food to warm our rooms। इस तरह से the heat released during burning of petrol or diesel in the vehicle engine increase pressure of the products to push and move the piston in the cylinder। the force of the piston turns the wheels and make the vehicle move। ये हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है ये जो चलती है कैसे, पेट्रोल और जो डीज़ल है जब इंजन में उसकी बर्निंग का प्रोसेस होता है तो उस बर्निंग के प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है और वही एनर्जी जो है वो व्हीकल्स को मूव करने में मदद देती है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर स्टेशंस जो हैं, आपको पता है कि थर्मल पावर स्टेशंस में कोयले को बर्न किया जाता है और कोयले के बर्निंग प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म एंड अलाइव। इसी तरह से हम जो खाना खाते हैं और जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, तो उस डाइजेशन के प्रोसेस से भी हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखती है और हमें ज़िंदा रहने में मदद देती है। इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोजन्स। ये जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, जैसे आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो बॉम्ब्स जब एक्सप्लोड होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है सराउंडिंग में। लेकिन ये जो एक्सप्लोजन्स हैं दे आर यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस। ये जो सुरंगें वगैरह खोदी जाती हैं उन सुरंगों को खोदने के लिए और रास्ता क्लियर करने के लिए वहाँ पर एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं और वो एक्सप्लोजन्स भी जो हैं वो किसकी एग्जांपल हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। अभी हमारा जो होमवर्क है, होमवर्क इस का हम करेंगे और दैट इज़ ऑन पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 5.11 डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। आई थिंक कि ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। बाकी तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान कवर अप कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग काइंडली आपके पास नोट्स मौजूद हैं, एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। इसी लेक्चर के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि यूनिट नंबर 5 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। Your reaction shows that you are happy to learn about reactions. Let's learn more about reactions. Do you know about endothermic and exothermic reactions? First, remember the meaning of exo and endo. Exo means release and endo means absorb. And do you know about thermic? It means heat. So, endothermic reactions are those which absorb heat and heat is released in exothermic reactions. Okay, can you give me an example of an exothermic reaction? Oh yes, you are right. Burning of matchstick gives out heat. It is an exothermic reaction.
Now, can you give an example of an endothermic reaction? Wow, you are right again. Evaporation is happening as heat is being absorbed by water and molecules are getting away from each other. Look at this picture. This picture is a photosynthesis process in plants. Can you tell which reaction this is? You have understood it well. Photosynthesis is an endothermic process as plants take heat energy from sun and convert them into glucose with the help of water and carbon dioxide. Exo and endo. Exo means release and endo means absorb. And do you know about thermic? It means heat. So endothermic reactions are those which absorb heat and heat is released in exothermic reactions.